is the conjugate of an element or transform of an element. Hmm. Conjugate or transform of an element in a group. What is the definition? Let A be an element of सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Yes, sir. आप लोग ना बोलना क्योंकि फिर मेरे कान फटने लग जाते हैं. थोड़ा आप लोग स्लो बोलना, जो भी बोले ना सवाल करें थोड़ा स्लो बोले. Let A belongs to G, then the element GA G inverse for G belonging to G is called conjugate of A. As we know that the group is closed under that operation. So we have taken another element. If for any element A belongs to G, this type of element exists, then we say that this element, specific type of element G, A, G inverse is the conjugate of element A. Or like if the group is not abelian, then these type of element do exist. For example, in the case of Z groups, these elements do not exist. There is only identity element that exists for these things. Like in Z6, if you pick 2 belongs to Z, then if we make 3 plus 2 plus minus 3, then by the property of commutativity, which is equal to 2 plus 3 plus minus 3. Actually, minus 3 here is 2. We get 2 plus 0, which is equal to 2. So there are 5 elements in Z6. We can write it as, but they are actually equal. They are not different elements. But in S3, if we take any element, 1, 2 belongs to S3, and for this we find the element G, then we get different elements for every G. For example, if we take G equals to 1, 3, then 1, 3 into 2 into 1, 3 inverse, and 1, 3 inverse is self inverse. So 1, 3 into 1, 2 into 1, 3. So by multiplying these through the method of अक्सर एमान कौन है? सर हमारी क्लास में तो नहीं है. Okay, now we multiply these 3 cycles, and if we want to pick 1, 1 is mapped onto 3, 3 is fixed in this cycle, and then 3 is mapped onto 1, so we get identity. If we pick 3, 3 maps to 1, 1 maps to 2, and 2 is fixed in the cycle, so 3 is mapped onto 2. Next, if we pick 2, 2 is fixed in the cycle, then 2 maps to 1, and 1 is mapped onto 3. So cycle closed, which is equal to 3, 2. So by this operation, we get another element 3, 2. Thus we say that 3, 2 is the this
we say that 3 2 is the conjugate of 1 2. 3 2 is conjugate of 1 2 because 1 3 into A into 1 3 is equal to 3 2. So 3 2 is the conjugate of 1 2, or 1 2 is the conjugate of 3 2. Similarly, 3 2 is the conjugate of 1 2. If we change the element G, we get a different conjugate. This happens in only S3, not in the group Z6 or Z8 or those elements. 1 2 is the conjugate of 3 2. Okay. Another definition for this is for A, B belong to G, B is the conjugate of A if B is equal to GA, G inverse. Same as this, if this is A, then this is B, because B is equal to GA, G inverse. If we can find G such that B is equal to G and GA, G inverse, then B and A are conjugate of each other. Next theorem. The relation of, actually this is the relation between elements of a group. The relation of conjugacy between elements of a group G is an equivalence relation. हाँ जी, लाइक बच्चों जरा बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करते हैं? लेटर में आप लोगों ने बहुत सर अच्छा, 3 सर वो प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक मुझे नहीं पता कौन कौन बोल रही हैं, लेकिन मेहरबानी करें थोड़ा सा स्लो बोलें। सर हमें तो आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा स्लो बोलें। बहुत आहिस्ता बोल रहा है। पता नहीं फिर मेरे हेडफोन जो है वो काफी अच्छा जी। So we are going to prove three properties. First property is symmetric, reflexive property, then symmetric, then the transitive. So, we denote the relation, conjugacy relation of an element by R or the relation dash. Let this hash be denotes the conjugacy relation. Conjugacy relation of elements of G. The first property is reflexive. As we know that we can write A is equal to identity A, identity inverse for all A belonging to U. This implies A is related with A. So A is conjugate of A. Next property is symmetric. Or just we let the let A is conjugate of
B, A is related with B means A is conjugate of B. This implies B is equal to GA, G inverse for G belongs to G. Now we have to prove that A is conjugate of B. We have supposed that B is conjugate of A, and we have to prove that A is conjugate of B. Uh, Using the properties of group, because G belongs to G, so G has an inverse in this. So pre-multiply by G inverse. G inverse B is equal to G inverse into GA. G inverse will get identity A. G inverse is equal to G inverse B by post multiply by G. Post multiply by G. G inverse B. G is equal to A G inverse into G. We get A E G inverse G, BG. This implies G inverse B G is equal to A. So we have proved that A is conjugate of B. ये लेक्चर के दौरान मैसेज करना ज़रूरी होता है. So we have proved that A is conjugate of B. We have supposed that B is conjugate of A. Now we prove that A is conjugate of B. This implies B is related with A. This implies the relation. This is symmetric. Next, transitive. As you know that we let do the three elements. Let the transitive property let A, B, C belong to G. Belongs to G such that A is related with B and B is related with C. This implies A is equal to B is equal to GA G inverse for G belongs to G, and C is equal to X B X inverse for X belongs to G. We have to show that A is related with C. This we have to show that. For this we show that C is equal to some Y A Y inverse. We have to find that Y. What is that Y? So just put the value of B from here in the second form of C. Mark this equation as 1 and this as equation number 2. From 1, B is equal to GA G inverse, put in 2, we get C is equal to X into GA G inverse into X inverse. We get X G into A G inverse X inverse. As we know that AB whole inverse is equal to
B inverse A inverse. So here we have G inverse X inverse. So we can write it as XG whole inverse. So here we have XG A into XG inverse C is equal to X. So this is something, some new element Y, and this is the inverse of that Y. So C is equal to YA Y inverse, where Y is equal to XG that belongs to the group G. This implies A is related with C. So C is conjugate of A. Thus we have proved that the relation of conjugacy is an equivalence relation. Thus this, this implies the relation is transitive, hence the relation of conjugacy is between elements of group G is an equivalence relation. Next is अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा उर्दू में आना पड़ेगा क्योंकि मैंने S3 और D4 जो है ना उनकी थोड़ी सी न्यू रिप्रेजेंटेशन आपको बतानी है, ताकि आपके एंड पे कोई माइंड में ना रहे कि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ी हुई। आपको मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि जब आपका ये विजिटिंग के लिए अभी मैंने ज्वाइन करना था तो डेमो हुआ था मेरा ना, राशिद साहब ने, मैं नाम भूल गया था, राशिद साहब है ना या अरशद साहब, राशिद साहब है, राशिद नाम, राशिद ही है ना मैं, हाँ जी। यस सर तो राशिद। उन्होंने लकीली मुझसे जो डेमो लिया था उसमें उन्होंने स्टार्ट किया, मैं क्योंकि ग्रुप थ्योरी पहले पढ़ा रहा था तो उन्होंने कहा कि आप ग्रुप क्या पढ़ा रहे हैं आज, मैंने कहा ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है व्हाइट बोर्ड पे आ जाए, तो व्हाइट बोर्ड पे आ गया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है एक ग्रुप है S3, मैंने कहा जी है, कहते हैं चलो ठीक है उसको बताएं क्या है। तो दो रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बता दी हैं ये तो मैंने वहाँ पे बताई थी, जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है जो नॉर्मली लोकल आप मुझे डबल आवाज़ आ रही है, तो वो ये जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है ये नॉर्मली आप जो है अगर एमएससी जो प्राइवेट करते हैं उनको ये पढ़ाई जाती है, ये परमुटेशन वाली जो रिप्रेजेंटेशन है S3 की ये नॉर्मली नहीं पढ़ाई जाती, ना वो ट्रायंगल के थ्रू जो मैंने समझाया है वो भी नहीं बताया। तो जो S3 की ये रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा तो वो सर ने तो मुझसे तीनों रिप्रेजेंटेशन पूछी थी, पहले मैंने ये जो अभी आपको पढ़ाने लगा पहले ये लिखी जो सर ने कहा नहीं है परमुटेशन की फॉर्म है, मैंने परमुटेशन लिख दी जो S3 की साइकिल की फॉर्म में, फिर उन्होंने कहा नहीं एक और भी है वो ट्रायंगल से, नहीं उन्होंने कहा एक ट्रायंगल ड्रा करें इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने कहा हाँ जी, कहते हैं यहाँ से परमुटेशन कैसे बनती है, मैंने कहा इनको ऐसे रोटेट करें और ये वो। तो अभी वो जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन की टाइप है ना उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें S3 को तो पहले उसी फॉर्म में देखें कि जो S3 आपके पास पहले इस फॉर्म में है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 and 1 3 2, so this we denote it as identity. So if we take A is equal to this, let A is equal to 1 2 3, then A square means 1 2 3 into 1 2 3, 1 2 3 तो इसका आंसर क्या आता है जी, आइडेंटिटी। आर यू श्योर?
So 132 आता है 132. 2 So a square is 132. What is a cube? A cube means 1 2 3 into 1 2 3 into, सर 132 को 123 से कराओ। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसकी जगह आप 132 भी लिख सकते हैं, बट मैं सर इसका आइडेंटिटी आएगा, फॉर्मल थोड़ा सा लेके चलता हूँ। तो ये क्या आ जाता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। सो मैं इसको लिख सकता हूँ a क्यूब इज इक्वल टू e। ठीक है जी। ठीक है। अब क्या करें, देखें इनमें से कोई भी एक ही फॉर्म में, बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं कोई भी एक ही फॉर्म में नहीं आया। अब जरा देखते हैं कि इनमें से अगर मैं इसको ए बी का नाम कर देता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू 1 2, देन व्हाट इज बी स्क्वायर? 1 2 into 1 2, and this is आइडेंटिटी। identity. Good. So b square is equal to identity. अब देखें जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं उनको मैं यहीं से बना लेता हूँ, इन दोनों को यूज करते हुए बना लेता हूँ। अब जरा देखें, इफ यू टेक ए बी मीन्स 1 2 3 into, 1 2 so what is it? 1 2 1 1 2 3 नहीं 1 तो क्लोज है ना, 1 2 और क्लोज 2 3। सोच लें, 2 ऑप्शन आ रहे हैं मुझे, मैंने नहीं। सर ये वाला ही है। यस ये वाला ही है सर। पक्की बात है। यस सर। सो मींस ये जो एलिमेंट हमने मिक्स किया हुआ, ये अब किसकी 2 इक्वल आ 3 गया? के ए बी किसकी इक्वल आ गया? 2 3 के। अब एक एलिमेंट रह गया, उसको देखते हैं। अब देखें ना, हमारे पास एक ए स्क्वायर भी तो है ना। हाँ जी। ठीक है, तो ए स्क्वायर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? ए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर इंटू बी करते हैं तो फिर क्या आता है? देखें, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है? 1 3 2 इंटू बी। बी हमने किसको लेट किया हुआ है? 1 2। इसको 1 2 multiply- इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर 1 3 आएगा। इसका आंसर 1 3 आ जाता है। सो हमने जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स हैं S3 के, उनको हमने कवर कर लिए ए बी सी की फॉर्म में। सो अब अगर मैं इस ग्रुप को लिखना चाहूँ तो S3 जो अब मेरा ग्रुप बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये मेरे पास है आइडेंटिटी। ठीक है, अगर मैं इनको पहले लिख लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है? ए है। उसके बाद ये क्या है? ए स्क्वायर है। देन इसको मैं क्या नेम दिया है? बी का। तो ये फिर क्या बन जाता है? ए ए स्क्वायर स्क्वायर बी बी, ए बी, देन ए स्क्वायर बी। ये भी कौन सी शरीक लेके आ रहा है? This is the third representation of S3 in the form of AB. तो यहाँ पे आप देखें 2 कंडीशंस हैं, 2 मेन कंडीशंस हैं ए और बी के ऊपर। ए के ऊपर कंडीशन क्या है? a टू द पावर 3 क्या आ जानी चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। बी के ऊपर कंडीशन क्या है कि b टू द पावर 2 क्या आ जानी चाहिए? आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। सिमिलरली आप अगर ए बी को देखें, ए बी का स्क्वायर लें तो वो भी क्या आ जाता है? ए बी का स्क्वायर आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी आ जाता है। तो यहाँ से S3 की जो न्यू रिप्रेजेंटेशन है वो इस टाइप की बन जाती है, ए बी सच दैट a पावर 3 b पावर 2 a b whole square is identity. This is the third representation in the form of generators. अब ये S3 cyclic नहीं है, ये माइंड में रखना है। S3 is not cyclic because it is not being generated by a single element. इसके लिए हमें 2 एलिमेंट
दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक को हमने एक थर्ड 3 साइकिल है एंड द अदर वन इज 2 साइकिल। तो एक को हमने ए के नेम कर दिया, दूसरे को बी का नेम कर दिया, तो हमारे पास वो पूरा ग्रुप जो है वो जनरेट हो रहा है। सो देखें, जब भी आपको इस फॉर्म में कंडीशंस गिवन होती हैं तो ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्कस करना बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, आपको सपोज ये नहीं गिवन, सपोज दिस इज नॉट गिवन, आपको ये नहीं गिवन, आपको इस फॉर्म में गिवन है। अब जरा देखें, हम स्टार्ट करते हैं ए से। ये आवाज आ रही है, देखें हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए की पावर्स हम लेते जाते हैं, ए टू द पावर ए टू द पावर 1, नेक्स्ट ए टू द पावर 2 एंड ए टू द पावर 3 क्या लिखना है हमने? आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम बी को स्टार्ट करते हैं, बी को स्टार्ट किया, देन बी स्क्वायर इज आइडेंटिटी। वो ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? इनको ऑपरेट करना। देखना ग्रुप है ना, तो ग्रुप के अंदर वो ऑपरेशन भी हमने कंप्लीट करने हैं। ए इंटू बी, ए नेक्स्ट बी, क्या? ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। ये देखें जरा, S3 आपका कंप्लीट हो गया। इसको अरेंज कर लें, आइडेंटिटी पहली पोजीशन पे आ जाएगा। आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी, ए बी, ए स्क्वायर बी। सर ये इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं, समझ नहीं आई। मैं न्यू रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ S3 की। सर वो तो जनरेटर S3 की फॉर्म में है ना, जिस पे आपने टिक लगाया है उसके नीचे। ये है, देखिए ना, ये सेट बिल्डर नोटेशन समहाउ है ना, तो ये तो उसके आगे एलिमेंट्स मैंने बता दिए, 6 एलिमेंट्स। सही है सर। ठीक है जी। सो S3 की ये रिप्रेजेंटेशन भी माइंड में रखें। अब देखें, कुछ बुक्स वालों ने ई की जगह 1 यूज किया होगा, जस्ट 1, ये भी हो सकता है कुछ बुक्स वालों ने यूज किया हो। अब ये 1 भी यूज कर सकते हैं, ई आइडेंटिटी ई के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमने S3 की परमुटेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, और ये हमारे पास कौन सी है? S3 की ए बी की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। अब आपने D4 या D8 जो है, इसके दोनों नेम है। D4 भी उसको नेम किया जाता है, उसको D8 भी नेम किया जाता है। D4 या D8 कैसे नेम किया जाता है? अच्छा, अब देखें ना, यहाँ पे अगर आप इसके सब ग्रुप्स लिखना चाहें ना, तो A3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे होंगे? A3 विल हैव आइडेंटिटी A and A square. Similarly, the subgroup of order 2 H3 contains E, आइडेंटिटी और बी। B, and H4 contains identity into comma AB, and H5 contains identity आइडेंटिटी ए comma स्क्वायर बी। A square B। अब देखें, यहाँ पे हमें ये चेक करना ईजी हो गया कि ए बी का ऑर्डर क्या है, बिकॉज साइकिल की फॉर्म में हमें ऑर्डर फौरन से पता चल गया है। इसका भी हमें ऑर्डर फौरन से पता है। इसका ऑर्डर क्या है? ए स्क्वायर बी का ऑर्डर क्या है? 2 है। जी 2 है। अब D4 को डिस्कस करते हैं। उसका मैं अब ये आपने परमुटेशंस की फॉर्म में खुद देखना है कि कैसे, क्योंकि D4 मैंने आपको परमुटेशंस की फॉर्म में भी डिस्कस किया हुआ है। अब मैं ए बी की फॉर्म में D4 की रिप्रेजेंटेशन आपको बता देता हूँ, आप खुद उसको कंपेयर करना कि आप किसको ए का नाम देंगे, किसको बी का नाम देंगे। एक रिप्रेजेंटेशन D4 की है, a to the power 4 is equal to b square is equal to ab whole square is equal to identity। ये नोटेशन भी यूज की जाती है, इस तरह से ब्रैकेट भी यूज की जाती है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो इसके एलिमेंट्स क्या बनते हैं? ए, नेक्स्ट ए स्क्वायर, नेक्स्ट ए क्यूब, और ए टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट वी गेट ए बी, नाउ ए इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी, ए क्यूब बी, ए क्यूब बी, और यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया। अब देखें, इसके 8 एलिमेंट्स आ गए। सो वहां पे आपके पास जो परमुटेशंस की फॉर्म में 4 साइकिल है, देखे ना, ए की पावर 4 पे आइडेंटिटी आ रही है। सो ए आपने ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा। ए आपने किस एलिमेंट को नेम करना है जिसका ऑर्डर क्या हो? 4 हो। आपने D4 जो बनाया हुआ है उसके अंदर जो 4 ऑर्डर का साइकिल है, 2 है, 2 में से कोई एक आप कंसिडर कर सकते हैं।
और बी का आपने ऑर्डर क्या लेना है, बी का ऑर्डर आपने टू लेना है, तो बी आप टू साइकिल या टू ऑर्डर वाले जो साइकिल्स हैं उनमें से कोई एक कंसिडर कर सकते हैं। तो आपका पूरा ग्रुप इस तरह से नेम होता जाएगा। देखिए ये याद रखना एज सच जरूरी नहीं है। अब देखिए ना, आपकी 29 की क्लास है, एक स्टूडेंट ने ए नेम दिया है 123 को, दूसरी स्टूडेंट ने ए नेम दिया 132 को, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, नेम दिया आपने। सेम ऐसे है जैसे एक्स वाई जी भी यहाँ पे नेम किए जा सकते हैं ना, ए और बी की जगह एक्स वाई जी, एक्स वाई यूज किए जा सकते हैं। एक बुक है उसने एस और आर यूज किए हुए हैं। सिमिलरली जो बी है, अब देखें बी हमने कौन सा एलिमेंट लेना है जिसका ऑर्डर 2 होगा। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। अब किसी एक को भी मेंशन करते हैं तो बाकी एलिमेंट्स उसी तरह से चेंज हो जाते हैं। असल चीज क्या है, माइंड में ही रखना है कि इसमें एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है, बाकी जो दूसरा एलिमेंट हमने नेम करना है उसका ऑर्डर क्या रखना है, 2 रखना है। S3 के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन है। जब D4 के अंदर हम आते हैं, D4 के अंदर क्या है, जो A है उसका ऑर्डर हमने क्या लेना है, 4 लेना है, और B और A B का ऑर्डर हमने क्या लेना है, 2 ही कंसिडर करना है। ठीक है जी। S4 की इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन डिफिकल्ट है। अब आ जाते हैं S4 की जो सब ग्रुप्स हैं। आपने ऑर्डर 3 तक आपने कहा है कि आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। मैं ऑर्डर 4 का एक सब ग्रुप उसका आपको बता देता हूं। ऑर्डर 4 का उसका एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ S4 ऑफ ऑर्डर 4। एक्चुअली तो यहाँ पे 4 सब ग्रुप्स आई थिंक बनते हैं, देख लो। स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी आना तो मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उस दिन असाइनमेंट्स लेता हूं और आप लोग उसकी पिक्चर्स बना के बाकी लोग जो स्टूडेंट्स उनके साथ शेयर कर सकें। किसी दिन भी आना हो तो मुझे आप एक दिन पहले ज़रूर बता देना, ताकि अगर मेरा उस दिन लेक्चर हो तो मैं आपकी असाइनमेंट्स आप लेता हूँ S4 की, वो आप लोग कर लेना बाद में। सब ग्रुप्स ऑफ, सर अब स्टूडेंट्स का आना Sir, बंद हो students are गया। not allowed. मैंने कल कुछ स्टूडेंट्स देखे थे, सर वो MS वगैरह के होंगे। बच्चे थे। चलें देखें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अगर आना हुआ तो, नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगा मैं ही सेंड कर दूंगा आपको। सब ग्रुप ऑफ S4 ऑफ ऑर्डर 4, मैं जस्ट एक मेंशन कर रहा हूँ, इसके 4 ऑर्डर के आई थिंक सो 3 और भी हैं, बट मैं जस्ट एक मेंशन कर रहा हूँ। वो है आपका इसका ये वाला सब ग्रुप 1 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, सर 2 है। 2 है। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो ये सब कर रहा ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी भी देखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करते हैं तो थर्ड एलिमेंट या आइडेंटिटी बन जाता है। इट सेल्फ तुम ऑपरेट करते हैं तो वो आइडेंटिटी आ जाता है, बट अगर डिफरेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो थर्ड एलिमेंट बन जाएगा। ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अब सर टोटल S4 के कितने सब ग्रुप्स हैं? S4 के ऑर्डर किस ऑर्डर के पूछ रही हैं आप? सारे कुल मिला के सबके। ये वर्बली तो याद नहीं है, मैं 1 बाय 1 आपको बता सकता हूँ। ऑर्डर 2 के 9 है, ऑर्डर 6 के ऑर्डर 3 के 6 है, ऑर्डर 3 के 4 नहीं है? 6 है। उसमें 3 अच्छा। टाइप के जो एलिमेंट 3 ऑर्डर जो एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं। एक मिनट अभी बता देता हूँ। सही है, ठीक है। ऑर्डर 3 के 4 हैं, ऑर्डर 3 के 4 और नेक्स्ट ऑर्डर 4 के एक मैंने लिख दिए, 3 और हैं। के बाद ठीक है। ऑर्डर 6 के 4 हैं। ऑर्डर 8 का एक ही है जो कि D4 का आइसोमॉर्फिक है। 4 आते हैं बट वो सारे आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, हम उसको एक कंसिडर करते हैं। ऑर्डर 12 का एक, ऑर्डर 12 का एक कौन सा है? 12 का
जिसमें 2 वाले आ रहे होंगे, 4 वाले आ रहे होंगे। 2 वाले आ रहे होंगे, 4 वाले आ रहे होंगे, और 4 वाले आ रहे होंगे, और 6 वाले आ रहे होंगे, और 10 वाले आ रहे होंगे। पता नहीं क्या क्या आ रहे होंगे। सिंपल सी बात है। सर ऑर्डर 6 का कितने हैं 4 है। और और 12 के? 1। अच्छा, ओके, अब देखिए ना, इसमें अगर मैं इसको एक एक को मेंशन कर देता हूँ, ए, दिस इज ए, देन दिस इज ए, 1 2 into 3 4, then a square is equal to identity. This is the identity. And if I take this equal to b, 1 3 2 4, then b square is equal to identity. Now a into b, a into b is 1 2 3 4 into 1 3 2 4. ये जी मल्टीप्लाई करें, क्या आता है इसका? 1 4 1 4 जी 3 2 2 3 1 4 2 3 2 3। 2 अब 3। देखिए थर्ड एलिमेंट हमने कवर कर लिया। इन दोनों का हमने नेम कर लिया, इसको हमने ए नेम किया, इसको बी नेम किया, तो थर्ड एलिमेंट हमारा क्या आ गया? ए बी। ए बी। सो इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन बनाए तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है? आइडेंटिटी ए बी ए बी। अगर इसकी जनरेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ए बी सच दैट ए स्क्वायर is equal to b square is equal to ab whole square is equal to identity. कुछ याद है ये कौन सा सूत्र है? जी यस सर। ये इसको स्पेसिफिक टाइप का ग्रुप है। ये वाला। हाँ जी, सर वो क्लाइन 4 वाला तो नहीं है? गुड सबा, गुड। ये क्लाइन 4 ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, और इसका ग्रुप का ऑर्डर 4 है, और ये नॉन साइक्लिक है क्योंकि इसको 2 एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या कौन सा ग्रुप है? V4 क्लाइन 4 ग्रुप। दोनों नेम्स हैं इसके, क्लाइन 4 ग्रुप एंड V4 ग्रुप। So V4 is subgroup of S4. Here we get that V4 is a subgroup of S4. अब देखें ना, इसकी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जस्ट वो 2 साइकिल्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है जी, इसकी ए बी की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ये आ जाती है, और इसकी परमुटेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ये आ जाती है। V4 is a billion, but not cyclic. साइक्लिक नहीं है, बट क्या है? बिलियन है। इसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप ए आपने ये लेट किया हुआ है, बी आपने ये लेट किया हुआ है, ये आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपका आंसर देन अगेन सेम आएगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इसमें होल्ड करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ बिलियन ग्रुप, बट इट इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है जी। ऑलराइट। इसमें क्या और काम है? ये रिप्रेजेंटेशंस आपने याद रखनी है इसमें। अब मैंने इनको ही यूज करना है आगे। अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। अब आपने कहा था कि कोसेट्स, नॉर्मलाइजर और ये चीजें हैं। इधर गया।
हाँ जी। अब इसमें देखें, ये जो आपके पास रिजल्ट है ना, इनको आगे हम और थोड़ा सा यूज़ करते हैं। इसको जब ग्रुप की फॉर्म में हमने डिस्कस करना होता है, इसके एलिमेंट्स को यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे ये रिजल्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइक ये देखें ना, लाइक कंडीशन जैसे गिवन है ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल, अच्छा एक मिनट पहले स्टार्ट करते हैं। हमें कहना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए का Yes, sir. इनवर्स क्या है? ए का इनवर्स क्या है? ए स्क्वायर है। A square. बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी इनवर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, ए बी होल स्क्वायर इज आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा देखें, अगर ग्रुप अबिलियन हो ना, ग्रुप अबिलियन हो, देन आप ए बी होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अदरवाइज आप इसको नहीं लिख सकते इस फॉर्म में। अदरवाइज आप क्या लिखते हैं? ए बी होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए बी इंटू ए बी। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स। दिस इम्प्लाइज बी ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, अगर आप इसको प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी इनवर्स, लाइक बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। Also बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए इनवर्स, दिस implies b is equal to a square b a square। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ? सर ये ऊपर स्टार्ट में आपने ए स्क्वायर को इनवर्स कैसे लिखा? देखिए ना, आपने जस्ट क्या किया, दोनों साइड्स पे ए की पावर नेगेटिव अप्लाई कर दी। ए का इनवर्स तो एग्जिस्ट ओ करता सही है, ठीक है। और भी क्वेश्चन जी? एक और रिजल्ट भी है, ए बी होल स्क्वायर जो है नो सर। identity, this implies AB equal to AB whole inverse, this implies AB is equal to B inverse A inverse, and this implies AB is equal to B A square। सर ये किसके एलिमेंट्स बनाए हैं? ये इसी S3 के ही एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लाइक आपके पास किसी पोजीशन पे कैलकुलेशन करते हुए बी ए बी आ जाता है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी पोजीशन पे आपके पास बी ए आ गया, उसको आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं। किसी पोजीशन पे आपके पास ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर आ जाता है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? बी से। किसी पोजीशन पे आपके पास बी ए स्क्वायर आ गया, तो उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। Alright, sir. क्लियर है? सिमिलरली अगर ए इनवर्स किसी पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बी इनवर्स किसी पोजीशन पे आ गया, तो आप उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो मैंने इतने बॉक्सेस बनाए हैं, 6 बॉक्सेस हैं, इन 6 बॉक्सेस को आप एक तो कैलकुलेशन भी माइंड में रख लें,
कैलकुलेशन भी माइंड में रख लें कि ये कैसे कैलकुलेशन मैंने की है, डिफरेंट आगे रिजल्ट्स बनाता गया हूँ, एक ही इक्वेशन मैंने यूज की है, उसी को यूज करते डिफरेंट रिजल्ट्स बनाता गया हूँ, और इनके रिजल्ट्स भी माइंड में बने कि रिजल्ट्स क्या बने हैं, ए स्क्वायर बी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, बी